Hello and a good afternoon to you all. It is a great honor to stand at IMA platform and address the dignitaries and our wonderful audience. You are indeed one of the best audience, always keen to learn. A huge round of applause to you all. A beautiful February day, a day well spent. We are almost towards the end of the first day. I asked Naveen ji कि हमें पोस्ट लंच सेशन क्यों दिया है? लंच के बाद तो सब सोते हैं. He said इसीलिए तो दिया है कि सबको नींद से जगाना है. Nobody will blink their eye when we have a powerful and a very interesting speaker, a known face in Indian television. Audience, please welcome Ms. Richa Anirudh. I request Ms. Chani Trivedi to please escort our speaker to the stage. We welcome you, ma'am. Please. I request CA Ms. Garjana Rathore to please give a floral welcome to our guest, Ms. Richa Anirudh. Ma'am, a heartfelt welcome in the city of Indore. I hope you had a wonderful Ujjain Darshan, Mahakal Darshan today. With not much ado, I request our AV team. Thank you, Garjana ji, for presenting a memento to Ms. Richa Anirudh. With not much ado, I request our AV team to play the introduction clip of Ms. Richa Anirudh. Richa Anirudh. Miss Richa Anirudh, a journalist, RJ, talk show host, author and an editor. Richa, one of the most popular faces of Indian television, is the producer and anchor of the YouTube show Zindagi with Richa. Her talk show Zindagi Live won the best talk show in all its 6 seasons. Her radio show Big Heroes is a phenomenal success at recognizing the unsung heroes of the society. She is the founder of Jamghat Chat for Change, a concept to inspire youth. She also runs a pavement school for underprivileged kids with the name of Jamghat Pathshala. We can see Richa as an expert advisor since 2011 on the famous quiz show Kaun Banega Crorepati. She was selected for UK government's prestigious Cheveling Gurukul Scholarship, which is offered to only 12 Indians every year. Richa was honored with Dev Rishi Narad Patrakar Samman by Indraprasth Vishwa Sanvad Kendra. Her show are a powerhouse of emotions, and her motto of all her interviews is telling stories, touching lives. Ladies and gentlemen, put your hands together for the radiant Richa Anirudh. This was very impressive, ma'am. जीवन के इस सफ़र में कदम लड़खड़ाएंगे तो सही, पर तुम संभल जरूर जाना. गिरना तो होता रहता है, पर तुम उठना मत भूल जाना. मैम, आपके द्वारा लिखी हुई और आपकी ही मधुर आवाज़ में दिल को छूने वाली कविताएं सुनी हैं. गहराइयों से जब आवाज़ निकलती है
तो ऐसी होती है. We have been throughout the day talking about AI, broadband, investments, real estates, but when it comes to each individual, question is, karna kaise hai? How to manage work and life and still become big? So, not delaying much, I request Ms. Richa to take over the session. The stage is all yours, ma'am. नमस्कार. मेरे लिए थोड़ी सी दुविधा है तो मैं पहले सब कन्फेस कर देती हूँ. मैंने अभी सिर्फ एक ही सेशन सुना है, बाकी सुने नहीं, लेकिन इतने दिग्गज लोग जब बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था. मेरे लिए बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बस बड़े मुश्किल से शब्द हैं. अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहूँ भी अगर तो फेल्ड एंटरप्रेन्योर ही कहती हूँ मैं हमेशा. एक दो चीज़ें जो ट्राई की वो हो नहीं पाई क्योंकि आई वर्क मोर फ्रॉम द हार्ट एंड almost zero from the mind, so tend to lose at a lot of things. और दूसरा जो उन्होंने भी कहा कि लंच के बाद का सेशन एड्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप सब ने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाया होगा, नींद आ रही होगी. मेरी तरफ से पूरी छूट है, किसी को नींद आ रही हो तो टेबल पर सरक कर प्लीज़ सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. अब इतने क्या बोलूँ मैं, मुझे तो आई एम फीलिंग सो, इफ़ देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड अनइंटेलेक्चुअल, जिस तरह की बातें मैं यहाँ सुन रही थी. ठीक है, चूँकि मुझे टॉपिक दिया गया है डायनामिक्स और वर्क लाइफ बैलेंस, तो मैं थोड़ा सा उस पर अपने विचार आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी. बहुत सारे पुरुषों को ये लग सकता है कि मैं बहुत फेमिनिस्ट व्यूज़ एक्सप्रेस कर रही हूँ, उसके लिए पहले से ही माफ़ी, क्योंकि जी ये सच है कि जब मैं बोलती हूँ तो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द इश्यूज़ ऑफ विमेन. और वैसे भी अभी तो G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि विमेन लेड डेवलपमेंट हैज़ टू बी द मेन एजेंडा फॉर इंडिया एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड. और उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, वर्क लाइफ बैलेंस. सबसे पहले तो मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ आप सबके सामने कि आपने कितना ऐसे इवेंट्स कभी अटेंड किए हैं जिसमें एक मेल स्पीकर से कहा गया हो कि वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं. कभी आपने सुना कि किसी पुरुष से ये बात पूछी गई हो? और महिला, वो चाहे एक टॉप एक्ट्रेस हो, कुछ सवाल सिर्फ महिलाओं के लिए ही रखे जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हो. सो व्हेन डू यू प्लान टू सेटल डाउन? जॉब के इंटरव्यूज़ में भी किसी पुरुष से कभी नहीं पूछा जाता कि अच्छा आप शादी करेंगे तो फिर काम बहुत आपका सफ़र करेगा, तो शादी की क्या योजना है आपकी, या फैमिली तो नहीं प्लान कर रहे हैं वरना हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे. ये सवाल सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए होता है. एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गर्ल्स बीइंग रिजेक्टेड ऑन दिस प्रीटेक्स्ट कि नहीं अभी तो आपकी शादी हो जाएगी, सो वर्क विल सफ़र. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस हियर. पुरुषों से कोई नहीं पूछता कभी कि वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे करते हैं. तो आप सोचिएगा, अभी हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो मैं चाहूँगी कि मतलब मैं भी थोड़े क्वेश्चंस एज अ जर्नलिस्ट, मेरी आदत है सवाल पूछने की. आप लोग ये सोचिए कि ये एक ऋचा अनिरुद्ध को ही ये टॉपिक क्यों दिया गया है. और अगले साल मैं ऑर्गेनाइजर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसी पुरुष को इस टॉपिक पर बोलने के लिए कहिएगा, ताकि पुरुष भी समाज में सोचना शुरू करें कि वर्क और लाइफ को उन्हें बैलेंस करना है. अब बैलेंस करने की बात अब देखिए एक चीज़ और है. हाँ सॉरी, एक डिस्क्लेमर मैं और बोल देती हूँ. अभी हाल ही में मैंने पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू किया था, एक्टर पंकज त्रिपाठी. पता नहीं आप में से कितनों ने देखा. तो उन्होंने मुझसे एक बात 2-3 बार कही, बोली आपने पूछा कुछ था, फिर मैं कहीं कहीं चला जाता हूँ, फिर किस्से सुनाने लगता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि ओरिजिनल सवाल क्या था. तो मैंने उनसे कहा ये दिक्कत मेरी भी है, तो कहीं कहीं हो सकता है मैं आपको भटकती हुई दिखाई दूँ. PPT तो जो बनी है पता नहीं, मैं ठीक है. लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात कर रहे हैं, बैलेंस क्या है या किसको करना पड़ता है? रस्सी पर जब जो नट हम बोलते हैं, जो बैलेंसिंग एक्ट है, वो इस देश में जितनी भी, और मैं कहती हूँ सिर्फ कामकाज ही नहीं, हर महिला को ही क्यों करना पड़ता है. इवन इफ इट्स बिटवीन द फैमिलीज, इफ इट्स बिटवीन द रिलेशनशिप्स, मायका और ससुराल, काम और घर, पति और बच्चे, हर जगह बैलेंसिंग करती आपको एक महिला ही दिखाई देगी. एक माँ दिखाई देगी कि आपके और आपके पिताजी के बीच में जब टेंशन हो रहे होंगे तो वो जो एक नाजुक स्थिति होती है उसको भी बैलेंस करने की कोशिश, जो घर में हर रिश्ते को बचा कर रखती है, वो बैलेंसिंग करने वाली कौन होती है? दैट वन
relative in the house is always 90% your mother. So I think balancing act comes very naturally to women. और ये भी एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम इस तरह से बात करते हैं तो मुझे कई बार लोग कहते हैं आप जनरलाइज मत कीजिए, तो ये मैं मानती हूँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. आप में से बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होंगे जो घर पर वाइफ की ड्यूटीज़ बहुत आगे बढ़कर निभाते होंगे, लेकिन जब हम इस तरह के मंच पे बात करते हैं तो हम आई थिंक 90% और 10% के रेशियो पे जब हम बात करते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि आम तौर पर हमारी फैमिलीज़ में या घरों में क्या होता है. तो मेरा ऐसा मानना है व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस, तो सबसे पहले हमको ये सोच लेना चाहिए, कई बार हम सबकी ज़िंदगी में स्थिति आती है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वर्क और लाइफ और बोथ. और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम लाइफ को वर्क से अलग क्यों कर रहे हैं. मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी से वर्क को हटा दिया जाए, जो मैं कर रही हूँ उस चीज़ को, उस मेरी पहचान को ख़त्म कर दिया जाए, तो मेरी आधी लाइफ, मेरा अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा ना. तो देन व्हाई डू आई नीड टू बैलेंस. द मंत्रा फॉर मी इज़ मोर देन बैलेंसिंग इज़ टू सेट माई प्रायोरिटीज़ राइट. कब मेरी ज़िंदगी के किस हिस्से को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है वो मुझे तय करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन मैं ये कहूँ कि काम ज़रूरी नहीं है, या अच्छा लाइफ को हमने ऑब्वियसली अपनी फैमिली, अपना वर्क के अलावा के सारे एस्पेक्ट्स, अपने रिलेशंस, अपनी सोशल लाइफ, सबको उसमें लाइफ में डाल दिया है. तो फॉर अ वर्किंग वुमन, आई थिंक ऑल ऑफ अस, हाउ मेनी वर्किंग वुमेन आर सिटिंग हियर? अ लॉट ऑफ नॉन वर्किंग वुमेन ऑल्सो पढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स हैं. आप लोग काम के बिना आपकी लाइफ आप कंप्लीट फील कर पाएंगे? कभी आपसे कहा जाए कि काम बंद कर दो, जो कि हमारे यहाँ बहुत बार करना पड़ता है महिलाओं को, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, आइदर इट्स मैरिज और देन हैविंग अ चाइल्ड, करियर में बहुत पीछे भी रह जाती हैं. बट I want to hear a big yes or a no. Can you imagine your life without your work if you are a working woman? Good, that should be a clear message, loud and clear to all the men in the auditorium. So मुझे लगता है कि हमें इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है. बैलेंस अपने आप तब हो जाता है जब हमें सिर्फ ये पता हो कि हमें किस वक्त किस चीज़ को अहमियत ज़्यादा देनी है, और वो परिस्थिति हम सबकी ज़िंदगी में आती है. मैं छोटे छोटे एनेक्डोट्स के साथ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी. एक बार मैंने अपने ऑफिस में, जब मैं एक न्यूज़ चैनल में थी, तो मैंने अपने कुछ मेल कॉलीग्स खड़े थे और किसी महिला पर उन्होंने टिप्पणी करी कि अरे ये मैडम तो जब देखो छुट्टी लेती है, कुछ इस तरह का, इनके घर में तो कभी कोई बीमार है, मैडम छुट्टी लेती रहती है. तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा एक आप सिचुएशन इमेजिन कीजिए, सुबह आप दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं, आप और आपकी वाइफ. अचानक कुछ ऐसा होता है कि घर का कोई बुजुर्ग या बच्चा बीमार पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि बच्चे की छुट्टी करवानी पड़ेगी या डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. तो मैंने कहा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट किसकी तरफ देखने की होती है कि कौन आज ऑफिस से छुट्टी लेगा. बताइए आप लोग, बहुत ईमानदारी से बताइए, कौन छुट्टी लेता है अगर घर में कोई क्राइसिस आती है? सर क्यों? क्योंकि हस्बैंड की कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी होती है ऑफिस में, या बॉस के साथ कुछ कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बाहर जाना होता है. हम पत्नी से, घर की महिला, आई एम नॉट सेइंग ओनली पत्नी, घर की महिला से तो पूछते भी नहीं कोई तुम्हारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम तो नहीं था. एंड आई एम अगेन सेइंग देयर आर 10% एक्सेप्शंस. तो ऐसा क्यों? एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्यों होती है टू एक्सपेक्ट द वुमन फ्रॉम इन द हाउस टू टेक अ लीव. ठीक है, वही पुरुष जब ऑफिस जाता है और उसकी महिला कॉलीग ने इसी वजह से छुट्टी ली होती है कि उसका बच्चा बीमार था, या घर में आज सास ससुर या माता पिता में से कोई बीमार थे, तो वही पुरुष कहता है अरे इन मैडम को तो जब देखो छुट्टी चाहिए. है ये बात सही या नहीं? बताइए. सारे पुरुष एक बार हाथ उठा दें कि बात सही है नहीं. आप अग्री करते हैं या नहीं कि हम अपने घर की महिला जो कि वर्किंग है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस दिन ऑफिस ना जाए जब घर को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन जब ऑफिस जाते हैं और कोई और महिला अपने घर की फैमिली के प्रेशर्स की वजह से छुट्टी लेती है तो हमें पसंद नहीं आता. तो ये डबल स्टैंडर्ड हमारी सोसाइटी का क्यों है एक वर्किंग वुमन को लेकर? आज मैं बहुत सारे सवालों के साथ आपको ऐसे छोड़ के जाऊंगी कि कल जब आप लोग सब ऑफिस जाएं, कल नहीं परसों, तो आपको कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान रहें कि बहुत आसान होता है किसी महिला से पूछ लेना, हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड लाइफ. इट्स नॉट ईजी. इट्स नॉट ईजी टू फाइट or probably face the expectations of your own family and face the criticism of your male colleagues कि आप तो जब देखिए आपको छुट्टी चाहिए.
सो देन आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. मैं आई थिंक स्लाइड्स तो मैं चला भी रही हूँ, नहीं चला रहे ना, मुझे इससे चलाना है क्या? आई डोंट नो, एम आई सपोज टू? अदरवाइज आई जस्ट हैव माई पॉइंटर्स रिटन समवेयर. कैन आई, डू वी हैव इट? गो टू द नेक्स्ट वन. ये हो गया. न्यूज़ एंकर होने का ये फ़ायदा होता है, हम इम्प्रॉम्प्टू घंटों बोल सकते हैं. दैट विल डू द इन द एंड. या सो जब मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला को जो वर्क और लाइफ बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एम्पैथी हो, सिर्फ सपोर्ट नहीं हो, एम्पैथी हो और अंडरस्टैंडिंग हो. आई मीट अ लॉट ऑफ women, sadly what happens is they are working. Do they work for themselves alone? No. If they are earning equally, if they are working as hard as the husband or the male members in the family, वो भी घर में पैसा लेकर आ रहे हैं, वो भी घर में they are bringing something to the table, right? But they are never encouraged like the men in the family. और अगर कहीं कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए, वो चाहे बच्चे को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो दे आर द वंस हु इमीडिएटली फेस क्रिटिसिज्म कि तुम तो घर पर ध्यान नहीं देती, तुम तो जब देखो तो अब तुम्हारे लिए अब तुम्हारा काम इम्पॉर्टेंट है. तो मेरा ऐसा मानना है कि women need to be supported by the family. If there's no support there, they need to find their own support system of friends, of colleagues, and nobody in the family is doing them a favor by supporting them, because whatever they do, if they're working hard in the field, they're doing it for their own family. तो इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ. माई मदर, मेरी माँ का हमेशा से बहुत मन था कि मैं उनकी बेटी ज़िंदगी में कुछ करे. आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर मतलब मैंने अपनी मदर, ग्रैंड मदर्स को घूंघट करते देखा है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट 80s. और एक बार मेरी नानी ने मेरी माँ से कहा कि तुम इसको खाना बनाना कुछ सिखा नहीं रही हो, इसका तो बहुत मुसीबत होने वाली है अपनी ससुराल में. एंड आई वॉज अ किड, मतलब ऐसा उसको शादी की उम्र में मेरी नहीं हुई थी. बट आई रिमेंबर माई मदर सेइंग कि जब ज़रूरत पड़ेगी खाना सब ये भी बना लेगी, सब बना लेते हैं, आदमी भी बना लेते हैं जब बनाना पड़ता है, मेरी बेटी कुछ बड़ा करेगी. So that first support system that came from my mother long back in the 80s when I was just a kid, and how she used to tell me, किरण बेदी के बारे में पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें कुछ करना है. तो उन्होंने इतना मेरे अंदर वो डाल दिया था. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बेटी ज़िंदगी में क्या करती है, उसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है. ये वर्क लाइफ बैलेंस सब हो जाते हैं व्हेन यू नो देयर समवन स्टैंडिंग बिहाइंड टू सपोर्ट यू इवन इफ़ यू फॉल डाउन. जो मैंने लिखा था कि कदम लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, बस उठना मत भूल जाना. आई थिंक दैट केम फ्रॉम माई पेरेंट्स who were very particular about this thing कि जब तक तुम अपना पैसा नहीं कमा के हमारे हाथ में 1-2 सैलरीज नहीं रखोगी, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे. और देखिए आज हम 2023 में जब बातें कर रहे हैं तो कुछ यंग लड़कियों को लग सकता है ये बड़ी नॉर्मल बात है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 1990s, जब ये इतना कॉमन नहीं था ये कहना कि वी विल नॉट गेट यू मैरिड अंटिल यू स्टार्ट अर्निंग. एंड आज हम इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अबाउट वुमेन की बात कर रहे हैं. माई मदर सेड आई वॉन्ट टू सेंड माई डॉटर ऑफ, मतलब जिससे भी शादी तुम करोगी, मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो, ताकि कल को ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आए, यू शुड हैव योर ओन मनी एंड योर ओन अर्निंग. सो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू टेल ऑल आर डॉटर्स. तो फिर अगेन बैलेंस हो जाता है सारी चीज़ें. एंड द अदर सपोर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम माई मदर वॉज व्हेन देयर वर टाइम्स जब मैं न्यूज़ एंकरिंग करती थी और कई बार रात 12 बजे तक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, कुछ हो गया है, एंड वी आर एंकरिंग. मैं रात 12 बजे घर आ रही हूँ, 1 बजे घर आ रही हूँ. कभी भी अगर मेरी बेटी ने कहा भी है ना कि आज मम्मा नहीं है घर पे, मेरी माँ ने उसको हमेशा ये एहसास कराया है कि वो मेहनत कर रही है ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके. सो ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट है मुझे लगता है घर में. इतनी सी बात जब हम एक वर्किंग मदर के लिए कर देते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारे हाउस होल्ड्स में उस वर्किंग वुमन को ताने मारे जाते हैं, मुझे लगता है दैट नीड्स टू एंड. वो तो बैलेंस कर ही रही है, हमें भी वो समझ अपने अंदर लानी होगी कि वॉट शी इज़ डूइंग इज़ फॉर द वेल बींग ऑफ द होल फैमिली. टुडे इफ आई हैव डन वेल, तो ऐसा तो नहीं है ना दैट माई फैमिली इज़ नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, माई मदर और माई डॉटर हैवंट बेनिफिटेड फॉर दैट. तो हम फिर उसको ऐसे सूली पे क्यों लटका देते हैं जो एक काम कर रही है. So that way my daughter was brought up very well, understanding that her mother is really working hard 20 hours a day so that she can give a good future to the daughter.
सो ये सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है. एंड व्हेन आई से सपोर्ट सिस्टम, अ लॉट ऑफ विमेन आई हैव मेट, आई हैव सीन हु गो थ्रू मेंटल एंड इमोशनल एंग्विश बिकॉज ऑफ दिस वर्क लाइफ बैलेंस. मुझे लगता है एक और चीज़ है जो मैंने शुरू में कहा कि पुरुषों से नहीं पूछा जाता, मुझे लगता है हमें इसको ना एंडोर्स करना भी बंद करना है, वर्क लाइफ बैलेंस. क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को ग्लोरीफाई कर देते हैं. ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर इफ़ अ वुमन हैज़ टू कीप बैलेंसिंग, तो ये बैलेंसिंग की सिचुएशन ख़त्म हो, चीज़ें स्मूथ चले, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम ऑल वुमेन नीड टू बिल्ड दैट वेरी स्ट्रांगली. तो आज मुझे लगता है आप सब लोग सोचिए, आई थिंक द मेन नीड टू थिंक वेदर दे आर एक्टिंग एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द वुमेन इन द फैमिली एंड इन द ऑफिस. आप अपने ऑफिस में जो महिलाएं, आप में से बहुत सारे लोग अपनी कंपनी में MDs, CMDs, फाउंडर्स होंगे. आपके ऑफिस में क्या ये माहौल है कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लग रहा है कि हाँ मैं वर्क और लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रही हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आ रही. देखिए गवर्नमेंट जब कुछ चीज़ें बना देती है तब तो विशाखा कमेटी बन गई तो हो गया, मैटरनिटी लीव की आ गई तो आप एज इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं? आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सहूलियत दे रहे हैं कि उसको ये नट वाला काम रस्सी पर चलना ना करना पड़े. सो आई थिंक सिंस यहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग है, ऑल यू डिस्टिंग्विश्ड पीपल, I think the time has come when we, as I said in G20, when we're talking about financial inclusion of women, financial independence of women, हमें सोचना होगा कि एक समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम महिलाओं के लिए, विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए कितना, मैं नहीं कह रही आप कंफर्ट मत दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि अगर मेरा मेल कॉलीग 15 घंटे काम करता है तो मैं नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स आई कैन. बट बहुत सारी चीज़ों में इतना छोटे छोटे बायसेस होते हैं. मैं न्यूज़ इंडस्ट्री के लिए बोल सकती हूँ, अब बदल गई है. हमारे समय पर, अगेन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट मैं न्यूज़ रूम में हम देखते थे, कभी कोई बड़ी खबर आ गई ना पॉलिटिकल, तो कई बार संपादक के मुंह से निकलता था, अरे फीमेल एंकर को हटाओ, वो मेल एंकर को लाओ, वो संभाल लेगा. ये छोटे छोटे बायसेस होते हैं. अब बहुत बदला है, मतलब, और उस बदलाव को लाने के लिए हर जनरेशन में महिलाएं बहुत लड़ी हैं. कुछ लड़ाइयाँ मैंने लड़ी होंगी, कुछ अंजना ने, श्वेता, आज जितनी फीमेल एंकर्स आप लोग देख रहे हो, हम सब एक टाइम पर एक साथ थे. कभी वी फॉट दोज लिटिल बैटल्स टू क्रिएट दैट कि भाई ये नहीं है, ये बायस नहीं है. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक कहानी बताती हूँ, उस पर बहुत वो हुआ था. तो मैं एक दिन न्यूज़ चैनल में जब थी, तो आई वॉज एंटरिंग माई ऑफिस, तो सामने बड़ा सा TV लगा हुआ था, हर न्यूज़ चैनल के बाहर वो लगा होता है. तो मैंने अचानक देखा कि प्रिया दत्त से रिलेटेड एक स्टोरी चल रही थी, और उसमें जो आप लोग एस्टन समझते हैं ना, जैसे नीचे जो एक लाइन होती है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो एस्टन में लिखा था प्रिया दत्त, संजय दत्त की बहन, एंड शी वॉज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दैट टाइम. मुझे समझ नहीं आया ऐसे, तो मैं गई आउटपुट पे अपने, मैंने कहा भाई प्रिया दत्त का डेजिग्नेशन क्या है? वो लोग समझ गए कि ये आएंगे. अच्छा, मैं झांसी क्यों, तो मेरा नाम रख दिया था, आ गई झांसी की रानी, अब लड़ने आ गई महिलाओं के मुद्दे पर. तो दे न्यू कि अब बोले हाँ संजय दत्त की बहन. तो मैंने कहा नहीं, बट स्टोरी में संजय दत्त का कुछ है नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कुछ और स्टोरी थी. इट वॉज इंडिपेंडेंट, शी हैड विजिटेड सम प्लेस. तो आई सेड कि बट क्यों, शी इज़ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. नहीं ऐसे ही चलता है, जनता को यही समझ में आता है, जनता को प्रिया दत्त संजय दत्त की बहन के रूप में ही पता है. तो मैंने कहा फिर आपका काम है बताना कि प्रिया दत्त सिर्फ संजय दत्त की बहन नहीं है, एक एक्टर की बहन नहीं है, उनकी अपनी एक पहचान है. तो थोड़ी कॉन्वर्सेशन हीटेड हो गया, फिर मैं थोड़ा चिल्लाई विलाई, फिर मैंने जाके को सी नाउ दीज आर टाइम्स व्हेन अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन डिसाइड टू सिट बैक कि ठीक है छोड़ो, क्योंकि अब हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, सब मेल्स सारे कॉलीग्स हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे. बट मैंने उस दिन आई एक्चुअली सैट डाउन, आई रोट अ मेल टू द एडिटर ऑफ द चैनल. आई सेड एज अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस एडिटोरियल टीम, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हम न्यूज़ चैनल चला रहे हैं या एंटरटेनमेंट चैनल, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल है तो संजय दत्त की बहन चल सकता है. मैंने कहा दूसरा, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रिया दत्त की पहचान इस चैनल के लिए क्या है. वो सिर्फ संजय दत्त की, इतना इशू मैंने उसका बना दिया कि फाइनली एडिटर हैड टू रिप्लाई बैक सेइंग नो, इफ द स्टोरी हैज़ नथिंग टू डू विद संजय दत्त देन शी इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कुछ रिलेशन होता उस स्टोरी में उनसे, तो वो तुरंत अगली न्यूज़ व्हील से वो स्टोरी में प्रिया दत्त का एस्टन चेंज किया गया. आप सोचिए कितनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम महिलाओं को कई बार अपने सिर्फ अस्तित्व के लिए, और ये लड़ाई मैंने अपने लिए नहीं लड़ी थी, मतलब हाँ कह सकती हूँ अपने लिए और हर महिला के लिए लड़ी थी, कि हमारी पहचान सिर्फ हमारा पिता कौन है, हमारा पति कौन है, हमारा भाई कौन है, हमारा बेटा कौन है, इसी में क्यों सीमित कर दी जाती है. एंड शी इज़ प्रिया दत्त. आप समझ रहे हैं कितने भी सक्सेसफुल. एक बार आपको याद हो, एक न्यूज़ एंकर ने सानिया मिर्जा से कुछ शादी से रिलेटेड सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा व्हाई आर यू आस्किंग मी, यू विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन टू अ मेल स्पोर्ट्स पर्सन. तो घूम फिर कर मैं बार बार यही कह रही हूँ कि
हमारी सोच, हमारी मानसिकता महिलाओं को लेकर वो बदलने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम कहते हैं सोच बदलने की ज़रूरत है, तो जो घर की महिला है उसके प्रति भी, और जो बाहर काम पर हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, हमारी कंपनी की प्रोग्रेस में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके प्रति भी। कि हम अब लड़कियों को, यंग लड़कियां आएँ तो उनसे सवाल इंटरव्यू में ना पूछें कि आपके शादी के क्या प्लान्स हैं, या व्हेन आर यू, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर न्यूली मैरिड, व्हेन डू यू प्लान टू हैव अ चाइल्ड। दैट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। I see a lot of senior management people here, that's why I'm raising this issue. I hope एक रिमाइंडर जैसा हो कि इस तरह के सवालों को अब इंटरव्यू उससे हटाया जाना चाहिए। एंड विमेन, प्लीज़ क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ विमेन। जो आदमी बहुत आराम से कह देते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, मुझे लगता है अब औरतों की जिम्मेदारी है इसको झुठलाने की, क्योंकि ऐसा है नहीं, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि घर में भी जो कह दिया था, अरे ये तो सास बहू, अरे ये तो नंद भाभी, ये बहुत बहुत सारे उसमें हमको वो किया गया है। हम अगर जिस दिन ऑल वुमेन ये तय कर लें कि हम परिवार में भी और ऑफिस में भी, वी विल क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द अदर वुमेन। जो घर में शादी होकर एक नई लड़की आई है, हम उसके लिए खड़े होंगे। ऑफिस में जो एक मेरी कॉलीग है, हम उसके लिए खड़े होंगे। सो कैन ऑल द वुमेन रेज योर हैंड्स एंड से यस वी विल डू दिस इफ यू हैवंट बीन डूइंग इट टिल नाउ। बहुत कॉन्शियसली अपने आप को रोज रिमाइंड कीजिए कि आई हैव टू सपोर्ट एटलीस्ट वन अदर वुमन वेन एवर शी इज़ इन क्राइसिस। अगर किसी को प्रॉब्लम है, मुझे याद है हम लोग जी में थे तो हमारी एक को एंकर शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, लेकिन वो भी बड़ी ज़िद्दी थी, वो आराम से छुट्टी लेने को तैयार नहीं थी, तो वो न्यूज़ पढ़ती रहती थी और ऐसा लगता था कि उसकी डिलीवरी अब किसी भी एक दिन दूसरे दिन कभी भी हो जाएगी। तो हम बड़े टेंशन में रहते थे कि किसी दिन बुलेटिन ना रोकनी पड़ जाए, इसको कुछ क्राइसिस ना हो जाए। आप बिलीव करेंगे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती थी, लेकिन मैं जब तक वो न्यूज़ पढ़ रही होती थी मैं अपना मेकअप नहीं हटाती थी, क्योंकि मुझे ये मंजूर नहीं था कि किसी तरह का इसके साथ कोई हेल्थ क्राइसिस आ गई तो तुरंत ही हो जाएगा, नहीं 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 लड़कियों को जल्दी छुट्टी दिया करो व्हेनेवर दे। सो आई यूज्ड टू बी ऑन स्टैंड बाय आफ्टर माई शिफ्ट यूज्ड टू एंड, सो दैट शी डजंट एंड इन ट्रबल। तो वो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सब लोग अपनी अपनी फीमेल कॉलीग्स के लिए और अपनी फीमेल रिलेटिव्स के लिए करना शुरू करें, सो आई थिंक बहुत हालात हम सबके बदल सकते हैं। और मैं शायद हर पॉइंट के बाद ये कहूँगी कि फिर वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ये आई थिंक वी ऑलरेडी इसमें मैं हाँ ये कहना चाहती हूँ, प्रायोरिटीज़ राइट व्हेन आई से। कई बार क्या होता है हम थोड़े से ज़्यादा एम्बिशियस भी हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें मुझे लगता है कुछ रोल ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट की वजह से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। सो इवन जब मैं बहुत काम कर रही थी, न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी, बाहर के असाइनमेंट्स करती थी, मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती थी, तब भी कुछ चीज़ों का मैंने बहुत पर्टिकुलर रखा था कि इफ़ माई डॉटर इज़ परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, नो मैटर वॉट। आई रिमेंबर एक बार कुछ हुआ था कि बहुत किसी बड़े एक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए मुझे मुंबई जाने को बोला गया था, बट मेरी बेटी की परफॉर्मेंस थी तो मैंने मना कर दिया था। उतना विजडम अगर हमारे अंदर रहे कि नहीं ये वाले दिन मेरे बच्चे के लिए या मेरी फैमिली के लिए या मेरी फ्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हियर आई कैन लेट गो ऑफ द वर्क, काम तो चलता रहेगा, उतनी प्रायोरिटीज। बट उसमें मुझे लगता है मैंने आगे एक चीज़ लिखी हुई है, नोबडी एल्स शुड टेल मी दैट। कोई और मुझे ना बताए कि आज इसमें से उसमें से तुम्हें ये चूज़ करना है। वो प्रायोरिटीज़ आप खुद सेट कीजिए। आपको लगता है कि आज ये मीटिंग छोड़ने के मुझे अपने बच्चे के स्कूल में मीटिंग में जाना है, आप बेशक जाइए, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो कोई और करे ना करे, आप कीजिए। यू नो कुछ चीज़ें बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमेशा याद रखते हैं। मदर से हैविंग मतलब वो होता ही है, क्योंकि इतना क्रिएट किया गया है माहौल, मदर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। सो कभी भी आपको ऐसा लगे योर फैमिली इज सीरियसली एक्सपेक्टिंग यू टू बी एट अ प्लेस फॉर विच यू हैव टू लेट गो ऑफ सम वर्क, मैं ये नहीं कहूँगी आप कीजिए नहीं कीजिए, बट मैंने when I had to prioritize, then I've obviously chosen my family, especially my child, over the work assignment that I was being given. So that's up to you to choose. ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसी पे ये it's not moving. हाँ, ये मैंने वही बोल दिया कि don't let others tell you what to choose. तो मुझे लगता है कि women a lot of times take a lot of decisions according to what others say. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जो भी आपको चूज़ करना है वो आप कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग बात करते बहुत आसान होता है दुनिया के लिए कह देना अरे कैसी माँ है,
अरे कैसी बहू है, अरे कैसी बीवी है। मैंने एक इंटरव्यू किया था अनु कुमारी का, शी वॉज यूपीएससी सेकेंड टॉपर, 2-3 साल पहले की ये बात है, अगर आप लोगों को वो स्टोरी याद हो। अनु कुमारी ने अपने आई थिंक 2.5 या 3 साल का उनका बेटा था, उससे 1.5 साल वो अलग रहीं क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ रह के वो तैयारी नहीं कर पाएंगी। तो उनकी माँ ने बेटे को संभाला और अनु कहीं एक रिलेटिव के यहाँ जाके चुपचाप अकेले में 1.5 साल पढ़ी, जिसके बाद वो यूपीएससी टॉपर थी, अभी वो केरला में आईएएस ऑफिसर हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ थिंग्स शी मस्ट हैव बीन टोल्ड बाय द पीपल। बोली, कहती हाँ कैसी माँ है, देखो छोटे से बच्चे को छोड़ दिया। वॉट वी डू नॉट लुक इज़ एट द बिगर पिक्चर। आज उसी बच्चे की माँ एक आईएएस अधिकारी है। तो जो मैंने पहले भी कहा, क्या उस बच्चे को उस बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा? विल हैज़न्ट शी मेड हिम प्राउड ऑफ द फैक्ट? हाँ ठीक है, वो एक 1.5 साल का स्ट्रगल था अनु के लिए, शी माइट हैव फेल्ड, बट उस 1.5 साल में क्या उसको वो सपोर्ट सिस्टम मिला जो उसको मिलना चाहिए था? नहीं। Despite the support system, she succeeded, she achieved what she wanted and she's standing where she is. तो अगेन बहुत ब्रेव हैं आप, बहुत सारी महिलाएं नहीं होती, they quit. एक और स्टोरी आपको बताती हूँ। एक बार हमने एक ज़िंदगी लाइव का एपिसोड किया था ऑन विमेन विद इन अनयूजुअल प्रोफेशंस। तो अब मैं जब अगेन बात कर रही हूँ 2008 और 9 की, तब विमेन बाउंसर्स का कॉन्सेप्ट बहुत नया नया आया था। तो चंडीगढ़ से एक लेडी आई थी हमारे यहाँ, शी वॉज अ वुमन बाउंसर। अब वुमन बाउंसर्स की ज़रूरत कहाँ होती है? लेट नाइट डिस्क्स वगैरह में, जहाँ पर पार्टीज़ और जहाँ पर इफ़ विमेन गेट ड्रंक, उनको संभालने के लिए, या महिलाओं के साथ छेड़खानी ना हो इंश्योर करने के लिए। उस लेडी ने जो अपना शेड्यूल बताया, मैं घबरा गई सुनकर। वो रात भर की शिफ्ट करती थी क्योंकि डिस्क सब रात में खुलते हैं। फिर बोली, मैम सुबह के 3-4 बजे घर आती हूँ, बस वो 6-7 बजे बच्चों को तैयार करने का टाइम हो जाता है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, फिर घर का सब काम देखती हूँ, खाना वाना बनाया, 1-2 घंटे सो पाती हूँ, बच्चे वापस आ जाते हैं, फिर उनको पढ़ाया और फिर शाम को फिर ड्यूटी पर। और उस बीच मैंने पूछा, मैंने कहा जब आप नाइट शिफ्ट पे जाती हैं, नाइट ड्यूटी पे, जाहिर सी बात है लोग आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाते होंगे। शी सेड, ये तो हमारे देश में मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो इट्स ऑब्वियस कि मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगी कि ऐसा करती है वैसा करती है। तो मैंने कहा आपको बुरा लगता होगा जब इतनी मेहनत कर रही हैं, बच्चा संभाल रही हैं, आपके हस्बैंड का कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। उस लेडी ने एक ही बात कही जो मेरे साथ रह गई। उसने कहा, मैम किसी ने ना मेरे घर में राशन नहीं रख देना है। वो पंजाब से आई थी, उस टोन में उन्होंने बात की। बट आप सोचिए कितनी बड़ी बात वो लेडी एक सेंटेंस में कह गई, किसी ने मेरे घर में राशन नहीं रख देना है। और मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि ज़िंदगी लाइफ के कई मेहमानों से कुछ एक सेंटेंस सीख के ना वो मेरे बात रह जाती है, एंड आई टेक इट एज अ लाइफ लेसन फॉर माई सेल्फ। टुडे व्हेन आई सिट बैक एंड थिंक कि अच्छा मैं ऐसा करूँगी तो वो ये कहेंगे, वो ऐसा कहेंगे, ये कहेंगे, पीपल विल जज मी। और फिर मेरे मन में यही सवाल आता है कि जितने लोगों के बारे में सोच रही हूँ उनमें से कौन तुम्हारे घर में राशन रखने आएगा? मैं उस लेडी का नाम भूल गई, लेकिन आज तक मुझे उसकी कही हुई वो एक बात याद रहती है। तो यू नो अ लॉट ऑफ विमेन नीड टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। तो जब आप बैलेंस करने की बात करें तो प्लीज़ ये देखें कि आपको किसके लिए बैलेंस करना है, कौन आपकी प्रायोरिटीज़ में है, कौन आपके कोर सर्कल में है। हर एक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको अपने बैलेंस के एक्ट में उनकी वजह से परेशान मत होइए। ये आई थिंक मैं कह ही चुकी हूँ कि अरे तुम कैसी माँ हो, तुम कैसी हो, ये है, घर नहीं संभाल पाती हो, ये सब बातें बहुत सुननी पड़ती हैं हमको। इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। ये तो आई थिंक हम सबके लिए, ये तो दिस इज़ एक्चुअली फॉर ऑल मेन ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ऐसा हुआ था। सो आई वॉज मैरिड, मतलब आई एम मैरिड टू एन ऑफिसर। तो मैं एक अखबार में नौकरी की शुरू में कि मुझे लगा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो और वहाँ पे, ये मैं आपको बात बता रही हूँ 98 की, सो सैलरी वॉज ओनली 1500 रुपीज़। तो मुझे कुछ लोग बार बार ताना मारते थे कि ये देखो अधिकारी की बीवी हैं और 1500 की नौकरी के लिए रोज़ ऑफिस जाती हैं। बहुत सुनना पड़ा मुझे। और मैं उन लोगों से जब मुझे ऐसा सुनना पड़ता था तो मैं ये कहती थी कि ये एक नौकरी देखना मुझे एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। और मैंने हमेशा ये अपने आप को बोला कि अभी इन लोगों की बात नहीं सुननी है, चाहे 1500 की नौकरी हो, चाहे 1000 की हो, तुम चुपचाप करती रहो, बिकॉज ये तुम्हें एक्सपीरियंस दिलाएगी। तो वो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप जो कर रही हैं वो आप ठीक कर रही हैं, जिस रास्ते पर आप चल रही हैं आप ठीक चल रही हैं, और एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगी। आई थिंक ऑलमोस्ट दिस, आई थिंक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है
कि हमें डेफिनेशंस अपनी बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी। हालांकि मैं इसमें एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि डोंट लेट योर वर्क अफेक्ट योर लाइफ एंड डोंट लेट योर लाइफ अफेक्ट योर वर्क। जब आप काम पर भी निकल जाती हैं, हम सबके साथ कई बार स्थिति होती है, कोई परेशानी है, घर है, सब कुछ है, मेरे साथ कई बार ऐसा होता था, लेकिन जब एक बार कैमरा ऑन होता था तो मैं सोचती थी कि अब अगले 1 घंटे के लिए सब भूल जाओ, अपने सब स्ट्रेस भूल जाओ, टेंशन भूल जाओ, अभी फोकस ऑन योर वर्क। तो अगर हम वो कंपार्टमेंटलाइज क्लियरली करना सीख लें कि नाउ इज़ द टाइम फॉर फैमिली, माई लाइफ, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर वर्क, बिकॉज इफ़ यू हैव चोजन टू वर्क देन वर्क नीड्स टू बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस। थैंक यू। बैठ कर आमने सामने हम बात करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, जिंदगी with Richa। चाहे रात देना मेरा साथ, हो मौसम कोई भी, धूप या बरसात। दिन हो चाहे रात देना मेरा साथ, हो मौसम कोई भी, धूप या बरसात। जब भी जगे नींद आँखों से, एक नए ख्वाब की हम बात करेंगे, एक नई सुबह तलाश करेंगे, जिंदगी with Richa। Thank you, ma'am. It was actually it has triggered us a lot. सबके दिमाग हिल गए हैं अभी। मैम जस्ट आप मुझे प्लीज़ रिचा कहिए। तो रिचा जी, व्हेन वी हर्ड यू, आपके जैसा आपने कहा कि मेरे इसमें फेमिनिज्म काफ़ी झलकता है, जो कि दिखा, लेकिन जब हम आपका नाम देखते हैं रिचा अनिरुद्ध, आई थिंक आप लोगों को पता है या नहीं, रिचा जी के हस्बैंड का नाम है। यूजुअली लोग अपने पेरेंट्स का नाम लगाते हैं या अपना सरनेम लगाते हैं, अपनी मदर का नाम लगाते हैं, जैसे संजय लीला भंसाली, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी मदर का, मेल्स हैं तो मदर का नाम लगाते हैं, या माई मैटरनल नेम, पर आपने अपने हस्बैंड का नाम रखा हमेशा आपके साथ जोड़कर। हाँ, तो इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन जो मैंने कहा ना कि डोंट जज मी बाय द प्रेजेंट टाइम्स, तो जब मैं 97 व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, बहुत छोटी छोटी वो जब हम बात करते थे बैटल्स की, तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं रिचा बादल कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अच्छा, अब तो बहुत कॉमन है, अब नॉर्मली आई डोंट सी एनी वुमेन एक्चुअली चेंजिंग नेम्स आफ्टर मैरिज, तो मैंने कहा कि मैं रिचा बादल कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे पापा तो बहुत टेंशन में आ गए उस ज़माने में कि अरे कैसे, क्या वही ऐसे तो नहीं होता, नाम तो चेंज कर, सरनेम तो चेंज करना पड़ेगा, ये है वो। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना सरनेम नहीं लगाने दोगे तो मैं उधर का सरनेम भी नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अनिरुद्ध का नाम लगा लूँगी। ऐसे करके एक वो उस समय का स्ट्रगल था। आज शायद ज़्यादा समझ होती, आज हम कुछ और बोल्ड स्टेप लेते, बट उस समय बस इतना ही था कि अपने पापा से ये कह दिया कि आप अपना नहीं लगाने दोगे तो उन लोगों का भी नहीं लगाऊंगी सरनेम, एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्टिंग। सो अभी हम ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं कि जब हम इतनी, जैसे आपने बोला कि हम वर्क लाइफ बैलेंस विमेन से ही क्यों बोलते हैं, और इस तरह की बातें हम विमेन से जब बातें करते हैं तो सरकार ने भी काफ़ी सारी सुविधाएं दे रखी है विमेन को, तो सरकार भी तो विमेन को ही कमज़ोर बता रही है। अगर इस मतलब ऐसा विचार आया है कि क्या इस तरह की सुविधाएं देकर अलग से, जैसे सीट अलग देना, या सीट अलग कहाँ पर, वो बस में यदि सीट अलग दी जाती है, महिलाओं का आरक्षण अलग होता है, तो क्या आपको कमज़ोर देखिए मुझे ऐसा लगता है सीट अलग या विमेंस कोच अलग,
क्या आप लोग ये मानना नहीं चाहते हैं कि महिलाओं के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा छेड़खानी है, बदतमीज़ी होती है? या हम कहें इसमें हम बराबरी आ गई है कि लड़कियां भी आजकल लड़कों को बहुत छेड़ने लगी हैं क्या? तो लड़कों को भी एक अलग कोच की ज़रूरत है। देख, कुछ सुविधाओं में तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको कमज़ोर माना जा रहा है। देर आर इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन। मुझे आज भी याद है, एक बार ऐसा हुआ था दिल्ली में एक बस में चलते हुए, कुछ इतना सब परेशान हो रही थी। मैं झांसी से गई थी तो वैसी थोड़ी डरी हुई, मैं बस से उतर के रोने लगी। और आपको पता है, ऐसा कई बार होता है ना, बचपना होता है, कुछ बात कहते हैं। मैंने कहा हे भगवान, मुझे बस इतना कुछ लायक बना देना कि जब मेरे बेटी हो ना तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना घूमना पड़े, उसके साथ ये छेड़खानी ना हो। तो सीट अलग या कोच अलग, उसमें कमज़ोर नहीं माना जा रहा है। ठीक है, तो पुरुष जिम्मेदारी ले लें, पूरा बराबर का ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि कोई प्रॉब्लम हो ही ना लड़कियों को। जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, मैं भी कहती हूँ कि हमें मेरिट के उस पर करना चाहिए, लेकिन फिर वो मैं हर चीज़ के लिए कहती हूँ। किसी भी तरह का विमेन शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट रिजर्वेशन, आप बराबर के उस पर लड़िए, लेकिन फिर जो इनिशियल प्लेटफॉर्म होता है वो भी सबको बराबर का मिलना चाहिए। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में एक जमघट पाठशाला, मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं, ये मेरा लेटेस्ट वो है। 1.5 साल पहले मैंने कुछ ऐसे बच्चों को सड़क पे ही पढ़ाना शुरू किया जिनकी कोविड के दौरान पढ़ाई छूट गई। और बच्चे कौन है? किसी के पापा इलेक्ट्रिशियन है, किसी के पापा माली हैं, कारपेंटर हैं। एक दिन एक बच्ची रोते हुए आई, उसने कहा कि मेरी माँ भाई को तो स्कूल भेज रही है, मैं कहती हूँ मुझे पढ़ा दो तो कहती है पैसे नहीं है। तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भाई को भेज रही है, तुम्हारी फीस हम भरेंगे। ये आप बराबरी समाज में ले आइए ना, और हर तबके तक, आखिर तक ले आइए। मैं रोज़ ऐसी बच्चियों से डील करती हूँ जहाँ उस छोटी सी 6 साल की बच्ची को पेरेंट्स स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। अचानक हम पूछते हैं क्या हुआ, तो 2 साल के भाई को संभालना है, इसलिए 6 साल की बहन को घर पर बैठना होगा क्योंकि मम्मी पापा काम पर जा रहे हैं। लेकिन अगर उसकी उम्र का एक भाई है तो वो स्कूल पढ़ने जाता है। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों में कहना बड़ा आसान है, हमें जब तक बिल्कुल आखिरी लेवल तक जाकर हम एक इक्वल सोसाइटी नहीं क्रिएट कर देंगे, तब तक सरकार को भी और पूरे समाज को, जो हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सपोर्ट सिस्टम आप नहीं देंगे तो वो फिर कैसे करे? वो तो उतना आपने इक्वल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी है ना उसको, फिर भी लड़ रही है। सही कहा आपने। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ महिलाओं। जमघट के बारे में जब आपने शुरू ही किया है, तो वो जमघट एक स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए चलाई हुई ऋचा जी के द्वारा एक स्कूल है फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? इसके पीछे भी थॉट एक्चुअली जस्ट पोस्ट कोविड शुरू हुआ था। हम लोग वो सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे कोविड के समय वो डोमेस्टिक हेल्प्स वगैरह को आना सब बंद हो गया था, और जब 1 साल बाद मेड्स को आना अलाउ किया गया तो 2-3 मेड्स मैंने देखा ऐसी आई कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आई। तो मैंने कहा भाई ये तो तुम्हारी बहुत छोटी है बच्ची, इसको तो मैं काम पे नहीं रखूँगी। तो वो लोग बोलते थे आप नहीं रखेंगे तो कोई और रखेगा। तो मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन क्यों? बस वो हस्बैंड की डेथ हो गई या काम चला गया या गाँव से आए थे, सब जो जितनी प्रॉब्लम सब जानते हैं कोविड में क्या हुआ। तो उसमें मुझे अचानक थॉट आया कि कितने सारे बच्चे हमारे बेवजह वर्कफोर्स में आ जाएंगे। ये बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल से इनकी छुट्टी करा दी गई है क्योंकि अब इनके पेरेंट्स की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लड़कियों को मैंने कहा उनकी माओ से कि तुम मुझे वादा करो कि इससे को काम पे नहीं लगाओगी, मैं इसको NIOS से पढ़ाऊँगी। ऐसे करके कुछ सिस्टम शुरू हुआ, बट कुछ नहीं फीजिबल जब हो पाया तो फिर मैंने अपनी टीम से कहा सड़क पे कुर्सी रखो, टेबल रखो, एक बोर्ड लगाओ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को जितने आएंगे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 2021 नवरात्र की शायद बात होगी, 7 बच्चे और मैं अकेली टीचर ऐसे सड़क किनारे बैठे थे। बट चूंकि हम सड़क किनारे थे तो आते जाते जैसे गार्ड सब लोग देखते थे, जो मेड्स वगैरह सोसाइटीज़ में आती हैं। आज मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से धीरे धीरे हम उन बच्चों को रेगुलर स्कूल में भी भेजते जा रहे हैं। जो बच्चे होशियार हैं उनको हम भेज रहे हैं। उनकी फ़ीस हमने सबके पेरेंट्स से कहा है कि 1 साल तक तुम्हारे बच्चे की फ़ीस हम देंगे, उसके बाद तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को। लेकिन जहाँ भी हमें लगता है कि ये खतरा है कि वो बेटी को काम पे लगा देंगे, सो वी आर स्टिल होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड कि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स काम पर ना लगाएं और बच्चा पढ़ता रहे। ये मेरी कोशिश है। बहुत ही खूबसूरत विचार है आपका। और कोविड के बाद में आपने ये जो पहल ली, बहुत ज़रूरत थी इसकी समाज में। आई थिंक काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और मुझे भी बहुत सारे पूछने हैं, लेकिन टाइम ऑर्गेनाइज ये आप भी जानते हैं कि समय के चलते हमको यहीं पे ये सेशन विल फिनिश दिस। तो थैंक यू ऋचा जी फॉर एम्ब्रेसिंग दिस ओकेजन, एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ IMA। आई थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। योर जर्नी फ्रॉम Zindagi Live to Zindagi with Richa has been remarkable. Thank you for being here.
I request Mr. Dharmendra Jain, CFO and Head HR Yash Technologies Private Limited, to take over the proceedings.